So let's start today's topic, that is run test. What is run test? A run test is a statistical test which we use to determine whether the data obtained from a sample is a random or not. Whether a data or a sample is random or not. To test the randomness of a data or of a sample, we use run test. The randomness of data is determined based on the number and nature of the runs present in the data of the interest. So, as you know, as the randomness or the run test is based on the runs. So first we need to study what is run. A run is a sequence of the symbols of same kind bounded by symbols of other kind. What does it mean? कि we have कि एक तरीके के symbols हैं उसके दोनों तरफ bounded by, that means दोनों तरफ कोई दूसरे तरीके का symbol होगा. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास सिंबल क्या है, अल्फा. सपोज वी हैव अ सिंबल अल्फा, देन इट विल बी बाउंडेड बाय सपोज बीटा बीटा. वी हैव symbol alpha and it is bounded by beta beta, or we have beta, it is bounded by alpha alpha. So this beta is bounded by alpha alpha. So that means a particular symbol is bounded by some other kind of symbol. A run is a succession of occurrence of a certain type preceded and followed by occurrence of the alternative types or by no occurrence at all. So you can see, for the example, you can see the first scenario. First scenario says we have two series of, suppose this is a kind of data and we want to see whether we have taken the response on a particular questionnaire on a particular data, particular variable, and that response given by some males and some females. Okay, कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं जिसने उस रेस्पॉन्स को दिया. अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या जो हमें रेस्पॉन्स मिला वो रैंडम था या रैंडम नहीं था. अब जिस तरीके से हमें रेस्पॉन्स मिला हमने उस नाम को एज इट इज लिख लिया कि समहाउ हमें जो रेस्पॉन्सेस मिले वो कैसे. फर्स्ट responses we get from the males, then we got the responses from female. जिस भी ऑर्डर में हमें मिला था हमने उस ऑर्डर को एज इट इज रख लिया कि सबसे पहले मैं सारे मेल से लिया तो सारे. तो क्या डेटा में रेंडमनेस है? नहीं है. क्यों? क्योंकि मिक्स होता है ये डेटा कि कुछ पहले मेल फिर मेल फीमेल या दो भी बीच में हो सकते थे. दैट्स व्हाई it may be random, but now in this situation this is not random. Okay, so हमें काउंट क्या करना है? हमें रन काउंट करने हैं. तो कितने रन हो गए? इस केस में हमारे पास 2 रन हो गए. 2 रन कैसे? दोनों कलर आपको दिख रहे हैं. जो दोनों कलर है वो अपने आप में रन है. जैसे ही आपका दूसरी चीजें चेंज हो जाएगा, दूसरा टाइप का सिंबल कलर चेंज आ जाए या दूसरा कलर आ जाए या दूसरा कोई भी सिंबल या लेटर आता है, उस केस में आपका रन चेंज हो जाता है. तो ग्रीन इज इटसेल्फ अ 1 run, yellow itself a 1 run. So in this series total we have 2 runs. Comes to the second scenario, you can count the runs. How we will count the run? We will count the run. This is a 1 run. I am making female by yellow, then male by green. So we will easily calculate our runs. Now you can count the runs. How many runs we have? We have 1, that is F. Then first is yellow, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So in this scenario we have
टोटल 10 रन्स। गॉट इट? कहां से स्टार्ट करना है? बिल्कुल जैसे ही आपका चेंज होगा तुरंत वो 1 रन काउंट हो जाएगा। कि फीमेल था तो अपने आप में एक स्टार्ट हो गया एज सच। जैसे आपने कुछ भी काउंट करना स्टार्ट किया वहां से 1 स्टार्ट हो गया। कुछ भी उसके ऑल्टरनेटिव कोई भी नंबर, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी लेटर आएगा, दैट विल इंक्रीज योर रन, नंबर ऑफ रन। तो जैसे एफ के बाद एम आया, हमारा नंबर 2 हो गया। फिर एम के बाद एफ आया, नंबर 3 हो गया रन का। एम के बाद फिर एफ आया, तो दैट मीन्स इस तरीके से आपके बढ़ते बढ़ते हमारे नंबर ऑफ रन बढ़ते चले जाएंगे। नाउ कम्स टू द लास्ट पॉइंट, कैन यू काउंट हाउ मेनी रन्स इन नंबर ऑफ इन सिनेरियो 3? How many runs in scenario 3? Can anyone tell? How many runs? 5, sir. 5 runs. Why 5? Because you can see this is a 1, this is a 1. Okay. And now this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5. You can see that we have only 5 numbers. या 5 sets आ रहे हैं कलर के हमारे पास. That's why easily you can say we have 5 runs. अब प्रॉब्लम क्या है कि यदि हमारे पास बहुत कम रन हो, ठीक है, तो भी हमें रैंडमनेस की प्रॉब्लम है, या बहुत ज्यादा रन हो तो भी हमें रैंडमनेस की प्रॉब्लम है। तो जैसे कि हम पहले में कह रहे हैं, the scenario has only 2 runs, therefore the scenario cannot be considered as random, because in this scenario we have very few runs. बहुत कम रन है, 10 में से सिर्फ 2 रन है। 10 वेरिएबल्स हैं, 10 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, हमारे पास कितने रन है? सिर्फ 2 रन है। अब दूसरी केस की हम बात करते हैं। दूसरे में हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन हैं और 10 ही हमारे पास रन है। तो इसमें कितना, बहुत ज्यादा रन हो गए। तो बहुत ज्यादा रन हो रही हैं, तो ये भी आपको किस तरीके का शो कर रहा है कि इसमें भी आपकी रैंडमनेस या ये डेटा भी आपका रैंडम नहीं है। तो आपने बाय डिफॉल्ट कर करके लिया, बाय मतलब जैसे ना कि बाय डिसाइडेड लिया है कि पहले में एक मेल का से पूछा जाएगा, फिर एक फीमेल से पूछा जाएगा, फिर मेल से पूछा जाएगा, फिर फीमेल। दैट मीन्स द पैटर्न इज फिक्स्ड। दोनों केस में, सिनेरियो 1 में भी क्या था कि पहले सारे मेल से पूछ लिया, फिर फीमेल से पूछा, तो योर पैटर्न वाज फिक्स्ड। सेकंड सिनेरियो में क्या है कि एकक एकक से पूछा जा रहा है, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। तो दैट मीन्स पैटर्न इज फिक्स्ड, दैट मीन्स दिस पैटर्न इज नॉट रैंडम। नाउ कम्स टू द थर्ड सिनेरियो। इन थर्ड सिनेरियो वी हैव द 10 ऑब्जर्वेशंस एंड वी हैव 5 रन्स। देन वी वांट टू स्टडी whether this number 5 is the random or not. That means this sequence is occurring randomly or not. So for this we need to perform a test, and that we can do, and that we can test with the run test. Okay, one more example I have given here. ये नंबर जरूरी नहीं है कि फीमेल मेल में ही हो, ये नंबर आपका 0 1 के तरीके से भी हो सकता है। जैसे इसको मैं आपको क्या कर दूं कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 0 0 0 0 एंड देन 1 1 1 1 1। तो ये भी आपके डिफरेंट सिंबल्स हो गए। तो ये कुछ भी हो सकता है, आपका प्लस माइनस सिंबल भी हो सकता है, जैसे हमने लास्ट में दिया है कि यहाँ पर कितने रन हो गए आपके लास्ट में, दिख गया आपको अपडेट, मुझे लिखना नहीं चाहिए था। किस तरीके से आ रहे हैं, वो इस तरीके से आ रहे हैं, 1 then 2 3 4 5 6 7 8। so by this you can see that we have 8 runs. so by for counting the runs, just cross the things, similar things at a time. जैसे मैंने माइनस माइनस एक साथ आ रहे थे तो उसको मैंने एक डंडा खींच दिया, प्लस एक आ रहा था मैंने एक डंडा खींच दिया, माइनस आया फिर डंडा खींच दिया, जितने प्लस आए थे। तो जो सिमिलर टाइप्स के आपके कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं या साइंस हैं, उनको सबको एक साथ खींच दीजिए और उनको फिर गिन लीजिए कि आपकी कितनी लाइन बन गई। तो दैट मीन्स इट विल गिव यू द नंबर ऑफ रन्स। सो इन दिस what is your null hypothesis? Our null hypothesis, that means what we want to test, we want to test whether the data, the sample is random or not. So for this I have taken the null hypothesis H naught as a sample is random, and alternatively the sample is not random.
Okay, how we can test it? It has some procedure. Okay, can you tell me it is a one sample or two sample? This is a one sample. All three scenarios are one sample case or two sample case? Say yes or no. One or two? Reply One. one. Why one? Because we have the two things, male and female. We have two symbols. Then I can say this is a two sample test. Can I say? नो सर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ही चीज के बारे में ही तो उनका वो ले रहे हैं ना रिस्पॉन्स। क्योंकि हमने जो वेरिएबल जो लिया जेंडर है, अब जेंडर से जो ऑब्जर्वेशंस पूछी जा रही हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारा? जेंडर है। तो जेंडर अपने आप में एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के रेस्पॉन्स एक तरीके से जो लिए जा रहे हैं, जो रेस्पॉन्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं कि वो रेस्पॉन्स हम किस तरीके से ले रहे हैं। ये आपका एक सैंपल है। दो सैंपल क्या हो सकते हैं? जैसे आपके पास दो अलग अलग ग्रुप हैं कि क्लास ए से पूछा, क्लास बी से पूछा, तो उन दोनों को चेक करना कि क्लास ए क्लास बी से क्या हमने जो इन्फॉर्मेशन मिली वो रैंडमली मिली या नहीं मिली। तो उस तरीके की इन्फॉर्मेशन की भी बाद में बात करते हो थोड़ा डिटेल में। तो नाउ इनिशियली वी आर टेकिंग वन सैंपल। ओके, फर्स्ट we need to assume that the data available for the analysis consists of a sequence of observation and recorded in order of the occurrence, which can categorize into two groups, two mutually exclusive categories, mutually exclusive groups, mutually exclusive types, male or female, और दोनों बिल्कुल अलग अलग है। क्लियर कट, वी हैव टू मेक two categories. Okay, then you need to, again we have no need to first, then again you need to determine total sample size. You need to determine total sample size. Then the number of observations for each group is presented as n1 number of observation of type 1, that means for the first group in the sense कि कितने मेल हैं। जो हमने दो कैटेगरी बनाई है उस कैटेगरी में number of observations for each one category n1, number of observation of other category n2, and total sample size will be n1 plus n2। और जो आपका n total sample size था ये 10 आपका, तो 10 में से सिर्फ हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने प्लस हैं कितने माइनस हैं, कितने मेल हैं कितने फीमेल। So that is a plus is a one category, minus is another category, and you want to count how many plus and how many minus. That will show the n1 and n2, and we have the total sample size. Then count the number of runs, and it is denoted by R. Number of runs denoted by R, capital R. Okay, to compute the exact test for the binary series, why we are calling it is a binary? Because हमेशा हमारे पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो कैटेगरी 1 से रेस्पॉन्स आएगा, कैटेगरी 2 से रेस्पॉन्स आएगा। We must calculate the probabilities of the obtaining given number of runs conditional on the number of zeros n1, or you can say the negative signs, and ones number of n2, that means कि फर्स्ट कैटेगरी के सैंपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेकंड कैटेगरी के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की काउंटिंग करते हुए जो हमारी सीरीज बन रही है उस सीरीज से। और हम ये मान रहे हैं कि जितना भी हमारे रन्स हैं, अब वो रन्स कैसे हो सकते हैं? वो दो तरीके से रन्स हो सकते हैं, या तो नंबर हमारा रन कैसे होगा, इवन नंबर होगा, या रन हमारा ओड नंबर होगा। सपोज वी आर टेकिंग रन एज अ, we are taking the number of runs as a even number, some even number, and we are saying it is 2u. u कुछ नहीं है, सिर्फ हमने कोई भी क्वांटिटी ली कि r is equal to 10 आया तो u आपका 5 हो गया, क्योंकि r equal to 2u रखने से मतलब है कि u कुछ भी लीजिए आप तो always you will get a even number, that's why we have taken u, but there is a no
clear, there is no clear cut notation or clear cut meaning for this u. We are taking it as a to denoting the number of runs as an even number, and this probability, this conditional probability will be equal to this probability, will be equal to this probability. Probability of r equal to 2u is equal to 2n1 minus 1 c u minus 1 into n2 minus 1 c u minus 1 divided by n c n1. So this is a probability of runs, get the probability of runs when run is a even number, but somehow it may be, the number of runs may be odd numbers, and suppose we have taken some odd number as 2u plus 1, that 2u plus 1 will always be a odd number. ये हमेशा एक odd number आपको दिखाई देगा, इसलिए 2u में एक जोड़ दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 2 4 6 8 10 बन रहा था, 2u प्लस 1 करने से आपका 1 3 5 7 9 11 13 15 17 कुछ इस तरीके की क्वांटिटी बनेगी। तो अब ये हमेशा 2u प्लस 1 हमेशा एक ओड नंबर होगा, विषम नंबर, विषम संख्या जिसको कहते हैं। इस केस में प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा चेंज हो जाती है और वो प्रोबेबिलिटी आपकी निकल करके आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2u प्लस 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 2u प्लस 1 इज इक्वल टू दिस one. Okay, so if you have even number of runs, then you have the formula probability of r equal to 2u, and if the number of runs is odd, then you have the formula probability of r equal to 2u plus 1. Alternatively, suppose the hypothesis of too many runs, कि हमारे पास बहुत ज्यादा रन है, then इस केस में हमारे पास अपर वन साइडेड p वैल्यू निकालनी होगी, और उस केस में वन साइडेड p वैल्यू क्या होगी, that will be the this probability. यदि हमारे पास बहुत ज्यादा रन है तो v इक्वल टू r गोज अप टू मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब जितना भी r की मैक्सिमम वैल्यू जा रही होगी, एंड इस केस में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू v आ जाएगा। और यदि हमारे पास बहुत कम वैल्यूज आ रही होंगी तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी, जो हमारा एग्जैक्ट वन साइडेड p वैल्यू जो निकलेगी, दैट विल बी दिस क्वांटिटी। और टू साइडेड p वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला ये हो जाता है। ये सिर्फ आपकी वैल्यूज की कैलकुलेशंस के लिए है, ठीक है ना, कि p वैल्यू हमारी क्या होगी, p वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए। तो p वैल्यू पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि p वैल्यू इस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में यदि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लार्ज हो जाती हैं, तो दैट मीन्स 4 लार्ज एन, इट विल बी इक्वल टू, then it will be approximately normal distribution, that means normal, that means it will be a z test. And what is will be z test, it will be equal to r minus expected value of r divided by square root of variance of r. Then in this case, what will be the expected value of r? The expected value of r will be 2n1 n2 upon n plus 1, 2n1 n2 upon n plus 1, where n1 is the number of observations in the first group or in the first category, and n2 is the number of observations in second group or second category. And similarly, you can see the formula for variance of r, then it will be 2n1 n2 into 2n1 n2 minus n upon n square into n minus 1. So this will be your variance of r. This is your expected value of r, and you know very well that
the distribution of this Z is nothing but it always follows N01. ठीक है, इसके बाद आपका क्या आया, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा जेड का हमेशा आपका कैसा होगा, इट इज ऑलवेज फॉलोज N01, always it will be always N01. It is always N0. सीधा सीधा जेड की वैल्यू को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की टेबल की वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं. ओके, टू सैंपल वोल्फोविज टेस्ट. टू सैंपल में क्या होगा कि एक ग्रुप है मेरे पास, बैच ए के स्टूडेंट है, बैच बी के स्टूडेंट है. ठीक है, अब उनके मार्क्स है मेरे पास. मैंने क्या किया कि दोनों के मार्क्स को मिक्स कर दिया, दोनों के मार्क्स को मिक्स कर दिया. मिक्स करने के बाद फिर मैंने देखा कि उनका ऑर्डर कैसे बन रहा है. मिक्स करके सारे डेटा कैसे कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, लाइक दिस. सपोज कि ये ए क्लास के ये एक बैच ए के स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 12, 14, 16, 19, 20, 25, 30 का कोई इंटरनल टेस्ट हुआ तो उसके हिसाब से सम चांस ये मैंने आपका असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया. इनके थे दूसरे बैच के थे 10, 14, 15, 17, 21, 24, 26, जितना भी था. जरूरी नहीं है कि सैंपल साइज सेम हो, जैसे भी आएगा. अब आपको कंबाइन बनाने के लिए क्या करना है, 10. तो 10 को हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ऑब्जर्वेशन हम लोग लिख रहे हैं वो किस सेट से आ रही है. तो जैसे ये आपकी बी से आ रही है, फिर हमारे पास आया 12 ए से आ रहा है, फिर हमारे पास आया 14. अब ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर नंबर ऑफ रन्स कि यदि इसे बी दे देंगे और इसे ए लेंगे तो नंबर ऑफ रन्स एक आपका बढ़ जाएगा. यदि हम इसे ए लेंगे और ये बी से तो एक नंबर ऑफ रन आपका घट जाएगा. तो इसको तो आपकी चॉइस है कि कैसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, 15 फिर बी से आया है, 16 ए से आया है, 17 बी से है, 19 ए से है, 20 ए से है, 21 बी से है, 24 बी से है, 25 ए से है, 26 बी से है, 30 ए से है. अब इस तरीके से आपकी ये सीक्वेंस बन गई. तो इसमें आपको नंबर ऑफ रन्स देखने हैं जो आपका ये बना है ए बी. तो आपने क्या किया कि दो क्लास के अलग अलग मार्क्स थे और दोनों के मार्क्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में कंबाइन किया. ये मार्क्स जरूरी नहीं कि आपने जब कलेक्ट किए थे तब असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, ऑब्वियसली ये मार्क्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगे. बट मैंने सिर्फ एग्जांपल कंसीडर करने के लिए कि इजीली ये एग्जांपल्स एक्सट्रैक्ट हो जाए, उसके लिए हमने ये मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखा. जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम इसी ऑर्डर में नंबर पूछेंगे. ऑब्वियसली जब नंबर इस ऑर्डर में नहीं होंगे तभी वो रैंडमनेस आएगी. ठीक है, तो रैंडमनेस कैसे आएगी कि पहले किसी बच्चे ने बताया मेरे 30 नंबर हैं, दूसरे ने बताया मेरे 12 हैं, थर्ड ने बताया मेरे 19 हैं, फिर फोर्थ ने बताया मेरे 10 हैं. तो इस तरीके से नंबर्स आपके बताते जाएंगे अलग अलग. उसको फिर हमें अरेंज करना है. और अरेंज किस ऑर्डर में करना है, पहले हमें कंबाइन करना असेंडिंग ऑर्डर में पूरे डेटा को, देन वी विल असाइन द ऑर्डर. तो ये ऑर्डर हमें प्लेस नहीं कर देना कि कौन से ग्रुप से कौन सी ऑब्जर्वेशन किस ग्रुप से आ रही है, वो हमेशा उसके साथ कैरी करानी होगी. तभी हम इस ऑब्जर्वेशन इस कैटेगरी इस ग्रुप के बिहाफ पर ही हम लोग उनके नंबर ऑफ रन्स कैलकुलेट कर पाएंगे. इस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे. गॉट इट. तो यही उसमें लिखा हुआ है.
the same test can be applied to test to the two sample situation, in which case is known as the, in this the test case is known as the Wold-Wolfish test. It is a function on overall test differences between the two independent sample. अब क्लास A है, हमारे पास क्लास B है, तो दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं. In this case, the data from two samples are combined into the single sample and arranged into ascending order of their rank. जिस भी तरीके से आपने रैंकिंग की है उनको, जो असेंडिंग सीरीज और नंबर थे, तो नंबर तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही हम लोग कह देते हैं कि वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, कि जिसके कम है उसको पहले रख रहे हैं, जिसके ज्यादा है उसको बाद में रख रहे हैं. दूसरे तरीके से भी आप लोग, कोई और तरीके का डेटा आपके पास है, तो फर्स्ट यू हैव टू अरेंज योर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, देन कंबाइन द डेटा सेट. नाउ then coded the data as 0 or negative sign for sample 1 and 1 or positive sign for sample 2. अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम A और B लिखें, यदि हमारे पास ये पे सैंपल A B भी कर सकते थे. इसी चीज को हम क्या कह सकते थे कि ये मेरा नेगेटिव है, किसी एक को हमने इसको हमें नेगेटिव कह रहे हैं, इसको पॉजिटिव कह रहे हैं, तो जहां जहां B था उसे पॉजिटिव कर दीजिए, जहां जहां A है उसे आप नेगेटिव कर दीजिए, इस तरीके से. या नेगेटिव को, पॉजिटिव को 1 कह रहे हो और नेगेटिव को 0 कह रहे हो. तो आपके ऊपर है कि कोड है सिर्फ आप कर रहे हो, इसका कोई काउंटिंग से, सॉरी, इसका कोई कैलकुलेशन में कोई खास रोल नहीं रहने वाला, सिर्फ आइडेंटिफाई आपको करना है. तो किसी को भी आप A कहिए, किसी को B कहिए, किसी को प्लस कहिए, किसी को माइनस कहिए, 0 कहिए, 1 कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स अप टू यू. देन टेस्ट प्रोफेसर इज 1 as in the one sample case, and the number of runs counted and the result compared to be to the expected under the null hypothesis, that namely that of the independence, कि जो डेटा आपके पास आ रहा है वो आपका इंडिपेंडेंस है, उस तरीके की रैंडमनेस को चेक करने के लिए. So what is the test statistic and decision rule? Suppose the test statistics in this scenario is R, that is total number of runs. And what will be our decision rule? Decision rule says that it is called the decision rule is also called the acceptance or rejection criteria. And what is your decision rule? We have the 3 kind of alternative hypothesis. First is two-sided. So two-sided, we will reject H naught if this R is less than the lower critical value or upper critical value. लोअर क्रिटिकल वैल्यू और अपर क्रिटिकल वैल्यू आपको रन टेस्ट की जो क्रिटिकल वैल्यूज की टेबल है उससे दोनों वैल्यू आपको साइमल्टेनियसली कैलकुलेट हो जाएंगी. अदरवाइज हमारे पास ऊपर फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, वो वहां पे हमें प्रोबेबिलिटी मिल रही है, वैल्यू नहीं मिलेगी. ठीक है. यहाँ पर सेकंड में वन साइडेड का मतलब क्या था कि बहुत कम हमारे पास रन्स हैं, तो वी विल रिजेक्ट our null hypothesis if R is less than lower critical value. ध्यान रखना, if reject H naught if R is less than lower critical value, and reject H naught in case of the one side right tailed if R is greater than upper critical value. तो ये डिसीजन जो है आपका, इसका आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से रिजेक्ट करना है, कि R की वैल्यू लेस है लोअर क्रिटिकल वैल्यू से तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, या R की वैल्यू ज्यादा है अपर क्रिटिकल वैल्यू से तो भी आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी. क्लियर है? तो एक्सेप्ट कब होगी? रिजेक्ट होगी हमेशा. तो एक्सेप्ट होने का सिर्फ आपका केस क्या बनता है? एक्सेप्ट होने का आपका केस बनता है जब R आपका, ये R आपका R is less than RU and this R is greater than RL. तो RL से तो R ग्रेटर होगा और RU से R छोटा होगा. RL से R बड़ा होगा एंड RU से R छोटा होगा. This is your number of runs. This is your lower critical value and this is your upper critical value. ठीक है.
एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल पूछा है कि एक कंडक्टर है जो ट्रेन के पैसेंजर्स को देख रहा है कि क्या, चेक करना चाहता है कि क्या ट्रेन में जो पैसेंजर्स मेरे बैठे हैं, जो चढ़े हैं, वो क्या, जो एंटर कर रहे हैं ट्रेन में पैसेंजर्स, क्या वो रैंडमली चढ़ रहे हैं या उसमें भी कोई ऑर्डर है। तो फॉर दिस, तो उसने क्या किया कि जो मेल फीमेल जिस भी तरीके से पर्सन्स एंटर कर रहे थे ट्रेन में, उनको नोट करता चला गया। तो यू कैन सी हेयर, तो फर्स्ट मेल फीमेल 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 मेल मेल फीमेल 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 मेल फीमेल मेल 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 फीमेल। अब यहां से कोई क्लियर कट डिसीजन आपके सामने नहीं है कि ना तो इसमें बहुत ज्यादा रन्स हैं, ना ही बहुत कम रन्स आपको लग रहे हैं। मुझे काउंट करके बता सकते हो कि एकदम बहुत ज्यादा रन भी नहीं है, बहुत कम रन है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कभी ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमें टेस्ट करनी है कि एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी आपकी? वी विल से द पैटर्न ऑफ द अक्रेंस ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स एंटरिंग इन द ट्रेन इज रैंडम। The pattern of entering the males and females in the train is random. How many runs now we have in this case? Tell me. How many runs? 10. 10. How? We will select it. First I am marking females. Then males. So those are not getting clearly, they can count the total number of colors set. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have total 10 runs. How many? What is the value of n1? n1 you can say the male number of male, or you can say female. किसी को भी हम n1 मान सकते हैं, किसी को भी हम n2 मान सकते हैं। तो n1 मैंने जो लिया है वो नंबर ऑफ फीमेल्स लिया है। तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कितना है नंबर ऑफ फीमेल्स। 3 4 7 8 4 12 और 3 15। तो 15 फीमेल है और 10 मेल है, क्योंकि टोटल हमारे पास 25 है। तो n1 हमने क्या किया, n1 हमारा हो गया टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दैट इज कैपिटल R इज 10, नंबर ऑफ फीमेल्स इज 15 जिसको हमने n1 कह दिया, n2 नंबर ऑफ मेल्स जिसको हम 10 कह रहे हैं। बिकॉज वी हैव टोटल 25 and out of 25 we have 15 females and 10 males. Now what will be the critical value for this runs, for this R and for these n1 and n2? What will be the critical value for these n1 and n2? क्रिटिकल वैल्यू देखने के लिए आपकी टेबल है। व्हाट इज योर m? m इसमें बस थोड़ा सा अलग दिया हुआ m और n। तो m आपका आएगा n1 और n आपका होगा n2। तो हेयर वी हैव, दिस इज योर n1, दिस इज योर n1 एंड दिस इज योर n2। यहाँ पर n1 कितना है आपका 15, n2 कितना है 10। तो यू कैन सी द वैल्यूज कोरेस्पोंडिंग टू 1510। तो 1510 द वैल्यू इज इक्वल टू 1510। so this is 15 and this is 10, so you can see this value. Above value is lower,
The 7 is lower limit and 18 is the upper. ठीक है. So what is your RL? RL means lower critical value of R is 7. Upper critical value is 18. So we have 7 and 18. And how many runs we have? We have 10 runs. So our R is coming in between null hypothesis will be accepted if R is lie between RU and RL. And you can see in this case the 10, the lower limit is 7, which is less than 10, and the 10 means our number of runs, and the upper limit is 80. So in this case, what decision we will take? We will accept H naught at 5% level of significance. And from this acceptance of null hypothesis, what we will conclude? We will conclude that the patterns of entering the passengers, that is male and female, into a train is random. The patterns of entering the male and females into the train is random. This is your conclusion from on the basis of this run test. Clear? Yes, If you have question, तो you can ask. सर Yes. जो अभी क्वेश्चंस बताए उसको इस सब भेज देना ग्रुप पे, क्योंकि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए बार बार वो हो रहा है. ये बेटा मैं सारा ही भेज दूंगा आप लोगों को, टेंशन ना लीजिए. कल आपको सारा नोट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट मिल जाएगा इन PDF. ठीक है. सर ये कैसे पता चलेगा कि रन्स कब कितने, मतलब कितने हम लोगों के फ्यू हैं और कितने हम लोगों के टू मेनी हैं? देखिए फी और म्यू में, फ्यू और मैनी में जैसे आप ये आपको देखने सीधा सीधा पता चल पा रहा था. जब हमने एग्जांपल सिनेरियो लिए, फर्स्ट और सेकंड जो सिनेरियो है हमारा, उस सिनेरियो से मोटा मोटा आइडिया हमको लग रहा है. कैसे लग रहा है आप ये देखिए कि एकदम से हमें पता चल रहा है मोटा मोटा, तो इस तरीके से देखने से कि यहाँ पर तो देखिए यदि आपके पास सिर्फ 2 ही सीरीज बन रही हैं, 10 ऑब्जर्वेशन से सिर्फ 2 रन आपके बन रही हैं, 10 ऑब्जर्वेशन से 10 रन आपके बन रही है. अब यदि 8-9 रन होंगे तो ऑब्वियसली 10 के रेस्पेक्ट में वो बहुत ज्यादा है. यदि वही रन 2 या 3 तक भी होंगे तो हमें लगेगा कि बहुत कम है. 4, 5, 6, 7 होंगे तो हम कहेंगे कि पता नहीं कि पैटर्न आ रहा है, रैंडम होंगे या नहीं होंगे. तो इसी तरीके से, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में क्या है, ये टेस्टिंग की हमें जरूरत क्या पड़ी कि अभी हमारे पास सिर्फ एक रफ आइडिया था. उस रफ आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए, उस रफ आइडिया को वैलिडेट करने के लिए कि क्या हम जो मान करके चल रहे थे वो हम सही मान रहे थे या नहीं मान रहे थे, उसी के लिए तो हमें टेस्ट लगाना है. तो लेकिन अभी आपको मान लीजिए कि आपने मानने के शुरू में कि मैं कह रहा हूँ कि 4 रन है, इन 4 को मैं मान करके चल रहा हूँ कि ये मेरे लिए मिनिमम है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए फ्यू है. मैंने उस हिसाब से टेस्टिंग कर ली. फिर मैंने दूसरा सोचा नहीं यार मैं मान करके चल रहा हूँ कि रैंडम है, फिर मैंने उस हिसाब से टेस्टिंग करके देखा. तो मैं कहीं ना कहीं एकदम एक्यूरेट डिसीजन डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता स्टैटिस्टिक्स में कभी भी. हमेशा जब भी सर इसका कोई रूल नहीं है, डिस्क्रिशन पे ही है ये जी. सर इसका कोई रूल नहीं है, ये अब डिस्क्रिशन पे ही है. कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं है. इट इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, इट इज बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चंस, जितना न्यूमेरिकल्स, जितने एक्सरसाइज आप करेंगे, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, उसी से आप आइडिया लगा लेंगे कि हाँ ये कम है, ये ज्यादा है. ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ये मेरा नंबर ऑफ रन्स कम है या ये नंबर रन्स मेरे ज्यादा है. ठीक है. और कोई क्वेश्चन?
और कोई क्वेश्चन? ओके